You see, thanksgiving धन्यवाद देना is not just what you say to God. ये सिर्फ वो नहीं है जो आप परमेश्वर से कहते हैं, Thanksgiving is not just our adoration to God. और धन्यवाद देना परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना नहीं है, But you see, thanksgiving is a powerful spiritual weapon in spiritual warfare. लेकिन धन्यवाद देना आत्मिक युद्ध में सबसे ताकतवर हथियार है। You see, our warfare is not physical, और आप देखो हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, it's spiritual warfare. ये आत्मिक लड़ाई है। And in this spiritual warfare, और इस आत्मिक लड़ाई में thanksgiving is a very powerful, one of the most powerful spiritual weapons. Somebody shout धन्यवाद hallelujah. देना एक सबसे ताकतवर हथियार है आत्मिक युद्ध का। Now you may say how? आप कहेंगे कि You कैसे? see, many people, बहुत सारे they are लोग binding the devil and nothing wrong with that. वो शैतान को बांधते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं You है, know, they're seeing witchcraft in every corner of the house. और वो घर के हर कोने में जादू टोने की शक्ति को देखते Are हैं। you listening right now? क्या आप सुन रहे You know, हो? a cat passes and says, my God, the devil just crossed. You know? और अगर बिल्ली भी रास्ता अगर जो है उनका रास्ते से गुजरती तो वो Some कहते peop- शैतान चला गया। Some people are so devil conscious और कुछ लोग जो है इतने ज्यादा शैतान को लेकर जो है वो चिंतित है that they miss God that's right in front of them. कि वो परमेश्वर जो सीधे उनके सामने है उस परमेश्वर को वो भुला देते हैं। How many of you listening right now? और कितने लोग इस बात को समझ रहे Are हैं? you listening right now? क्या आप सुन I'll रहे give you an हो? example of being devil conscious. Listen और to me. मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कितना ज्यादा लोग शैतान और शैतान के We- बारे में सोचते रहते हैं They're so focused on the devil. और उनका ध्यान इतना ज्यादा शैतान पर है। One day, एक we दिन- used to have a very small service, हम एक बहुत छोटी सभा हम लेते थे and it happened that one lady came running to me, और ऐसा हुआ कि एक महिला मेरी ओर दौड़ कर आई and she said, Pastor Mike, और उसने कहा पास्टर माइक, you really need to fast and pray. आपको सच में उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है। I said, why? मैंने कहा क्यों? What happened? क्या हुआ? He says, I found 5 lemons fallen over there. और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर 5 नींबुओं को जो है नींबुओं को जो है गिरा हुआ देखा It's just outside the gate of the hall. और ये जो है हॉल के जो बाहर जो गेट है वहां पर था। Now, you know, I was praying and suddenly this woman comes and tells me all this. और मैं प्रार्थना कर रहा था और अचानक से ये महिला दौड़ कर आती है और ये सारी बातें बताती है। And she said, Pastor, it's bad. 5, not 1, not 2. How many? Say 5. और फिर उस महिला ने कहा पास्टर ये सच में बहुत ही जो है खराब बात है कि 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 नींबू हमने देखे Now वहां my mind, I stopped praying and my mind was focused. Oh God, let's go on a 21-day fast. Let's go on a 40-day. Because you see, devil conscious. How many of you listening right now? Hello, hello, hello. और जैसे ही Yes. उस महिला ने ये बात बताई मेरा ध्यान प्रार्थना से हट गया और मैं मन में सोचने लगा कि आओ हम 21 दिन के उपवास में जाए, 40 दिन के उपवास में 40 जाए. दिन के उपवास में जाए। And I went over there. और फिर मैं वहां And गया I was just going over there. और जब मैं वहां पर जा रहा And था I saw 5 lemons falling और down. मैंने वहां पर 5 नींबुओं को गिरा हुआ देखा। Listen, everybody listen to और this. सुनो सभी लोग इस बात को सुने। And suddenly one young guy comes और अचानक से एक नौजवान लड़का and आता he है said, और वो कहता है and he says, my cart just, you know, उल्टा हो गया और मेरा लींबू का गाड़ी ऐसा हो गया. ये मेरा लींबू है. And he picked it up and he went over there. How many of you are understanding what I'm saying? और वो जो ठेला लगाने वाला लड़का है उसका ठेला पलट जाने के कारण वो नींबू गिर गए थे और उसने कहा कि मैं ये मेरे नींबू है मैं इसे ले जाना I चाहता felt so foolish हूं। और मुझे बहुत ही मूर्खता का आभास हुआ that I was more conscious of the devil that was, you know, rather of the devil rather than God who was with me. और मुझे Hallelujah. इस कारण मूर्खता Come on, का आभास somebody. हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर से ज्यादा शैतान के बारे में सोच रहा था। Many Christians are like that. बहुत सारे मसीह ऐसे हैं। Hello, are you with me right now? और क्या आप मेरे साथ हो? You know, they see the devil in everything. आप देखो वो शैतान को हर चीज में देखते हैं। Hello, are you there? क्या आप मेरे Now, साथ हो? nothing wrong with spiritual warfare, but one of the most important spiritual weapons that I want to share with you today is thanksgiving. Somebody say thanksgiving. अब देखिए आत्मिक युद्ध के Yes. साथ गलत कुछ नहीं है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक हथियार जो मैं आपको देने वाला वो है Listen. धन्यवाद देना। Go with me सुने to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18. और मेरे साथ जाइए पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय और वचन 18 Notice what it says. और ध्यान दें यहाँ पर क्या लिखा है In everything, और हर एक बातों में give thanks, धन्यवाद दो for this is the will of God in Christ Jesus for you. क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है तुम्हारे लिए। Say it, everyone, in everything. और सभी लोग कहे हर एक बातों में It does not say for everything, और वो ये नहीं कहता कि हर बात के लिए but it says in everything. लेकिन वो कहता है हर बात में। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं You इस बात don't को? thank God for the problem, but you thank God
in the problem. How many of you are listening right now? आप समस्याओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन उन समस्याओं में रहकर आप प्रभु को धन्यवाद देते क्या बात है? Somebody give Jesus a clap हैं। और offering कोई right now. प्रभु यीशु मसीह को जो है Now, धन्यवाद की many भेंट people दें। misunderstand this verse. अब देखिए, शायद आप इस वचन को गलत समझ ले। Many people do that. बहुत सारे So लोग one ऐसा lady, करते you know, हैं। I was praying, with her in the intercession. She says, और he says, मध्यस्थी की प्रार्थना में एक महिला के साथ मैं Pastor, प्रार्थना I कर रहा था, thank God for this back pain. Hallelujah. और इस महिला ने कहा, पास्टर मैं धन्यवाद करता हूँ इस पीठ के दर्द के लिए, प्रभु का धन्यवाद, I हालेलुया। said, God did not give it to you. Why are you thanking God? मैंने कहा, परमेश्वर ने ये दर्द आपको नहीं दिया, आप परमेश्वर का धन्यवाद भला No, क्यों कर रहे no, हो? no. The Bible says you should give thanks in everything. नहीं नहीं, उन्होंने कहा, बाइबल कहती है कि हर बातों में आपको परमेश्वर का धन्यवाद I देना है। said the Bible says in everything give thanks, not for everything. How many of you are listening right now? और बाइबल Yes. कहती, मैंने उसे कहा कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद मत You should करो। say, आपको कहना Father, चाहिए, I have this excruciating back pain, but Lord, I know you are still on the throne. Hallelujah. और- I thank you. Come on, somebody. आपको कहना चाहिए, पिता ये बहुत ही ज्यादा दर्दनीय जो है पीड़ा मेरे साथ है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अभी भी सियासत Now you lost your job. You should not say, thank you, Lord, I lost my job. People think you're nuts now. और आपने अपनी नौकरी गवा दी, आपको धन्यवाद नहीं देना, प्रभु धन्यवाद मेरी नौकरी चली गई। लोग सोचेंगे आप जो है पागल या मूर्ख है। Hello, are you there right now? और क्या आप सुन रहे हो? Then if you invite people to the church, they'll not come. They'll think you're Looney Tunes. Hello, are you और there? फिर देखिए, अगर आप Jesus. ऐसे हालत में लोगों को कलीसिया बुलाएंगे तो वो Yeah. नहीं आएंगे, उनको लगेगा कि आप तो जो है आप पूरी तरह से मूर्ख हो। You see, many Christians, they don't know what they're doing. और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। So you should say, Father, I might have lost my job, but still you are Jehovah Jireh, the Lord who और आपको provides. कहना Come है on. क्या? You need to raise your hand and shout hallelujah. Come on. और आपको कहना चाहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भली मेरी नौकरी चली गई लेकिन आप अभी भी यहोवा हीरे है, मेरी मदद करने वाले, मेरी मेरी जरूरतों को जरूरत को पूरा पूरा करने करने वाला. वाला. Come on, how many of you saying amen to और that? कितने लोग आमीन So कहेंगे if इस you're बात पे? if you're going through tough times, तो अगर आप कठिन हालातों से जा रहे हैं, thanksgiving is your weapon of your choice. धन्यवाद देना आपका हथियार है, आपकी चुनाव का। Yes, God will not push you to it, देखिए, परमेश्वर इस हथियार के इस्तेमाल के लिए आपको जोर नहीं देगा, but it's the weapon of your choice. लेकिन ये वो हथियार है जो जिसे आपको चुनना है। I like these young guys, I don't play games, but I like to see these young guys, My goodness, I was in a foreign country and there's a big arcade. And, the pastor's son said, choose what weapon, which do you want? I said, I don't know, you choose. और मुझे ये नौजवान My लोगों का goodness. तरीका अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक दिन विदेश में था किसी पास्टर के साथ, उनके बेटे के साथ, और हम एक जगह पर गए जहाँ पर ये Video बहुत games, सारे वीडियो गेम की एक जगह थी, और उन पास्टर के बेटे ने कहा, पास्टर आप चुनाव करो, आपको कौन सा गेम खेलना है, हथियार, वो गेम में हथियार. और उस गेम में कौन सा हथियार वाला So I गेम आपको खेलना I है। said, you can choose the weapon. He said, you can choose the weapon, pastor. और उसने कहा कि पास्टर आप हथियार को Anybody चुन knows what I'm सकते हैं, talking Yeah. कौन सा हथियार आपको इस्तेमाल करना है। So in this spiritual warfare, और इस आत्मिक युद्ध में you get to choose the weapon. आपको हथियार चुनने का मौका मिलता है, And you get to choose the best. Somebody say, I और receive. सबसे उत्तम हथियार को चुनने का मौका मिलता है। Nobody is a fool to choose the wrong weapon. So thanksgiving is a weapon of your choice. Write this down, please. और कोई भी गलत Wow, हथियार that's इस्तेमाल good. करने की मूर्खता नहीं करेगा, इसलिए धन्यवाद देना आपके लिए सबसे महान ऐसा हथियार है। I tell you why it's a weapon. मैं आपसे कहूंगा कि क्यों ये एक हथियार है। Because if there's anything that can bring the presence of God faster than anything, it is thanksgiving. Somebody shout amen, somebody. मैं इसके Yes. सबसे असरदार या ताकतवर हथियार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा है जो प्रभु की उपस्थिति को बहुत तेजी से ला सकता है तो वो है धन्यवाद देना। Thanksgiving will bring the presence of God in any situation so fast you'll be shocked. और धन्यवाद देना किसी भी हालत में परमेश्वर की उपस्थिति को इतनी तेजी से लाएगा कि आप अचंभित हो जाओगे। Many years ago, कृपया इस बात को I समझे, बहुत सालों I पहले was in this service. मैं एक सभा में था, It was a service in some village, और किसी गांव में ये सभा चल रही थी, and suddenly this lady started manifesting. और अचानक से ये महिला जो है उसमें दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगी। Yeah, and she was, three women were catching her on one side, three women, and she would just toss them like some, tops. और इस एक अकेली महिला को तीन लोग Jackie एक Chan. ओर से जो है पकड़े हुए थे, दूसरी ओर से Yeah. तीन लोग, लेकिन ये महिला सभी को अकेली होकर जो है सबको वो हवे में जो है उठा फेंक And रही mind थी। you, those women were strong, brother. If they caught you, you would ask for mercy from God. Hello, are you और with me right जिन now? महिलाओं ने उस स्त्री को पकड़ा था वो बहुत ही कटकाटी में मजबूत थी, और Mazboot, I like that word, mazboot. और Hallelujah. अगर आप उस जगह पर होते तो आप शायद दया की भीख मांग।
They were not like dolls, you know. They were. और वो कोई जो है गुड़ियों के समान नहीं थे And this lady, skinny Binny, she threw them this side. और वो दुबली पतली अकेली महिला इन तीनों को जो है वो हवा में उछाल देती है 6 लोग पास, 6 लोग 3 इस तरफ, 3 इस yes. तरफ. And I looked at them and said, God, और it may be मैंने- next, maybe me. और मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा शायद अगला नंबर मेरा है So I stood from far. I said, come out in Jesus' name. और इसलिए मैं दूर खड़े होकर कहने लगा यीशु के नाम से बाहर आ That lady looked. और उस स्त्री ने देखा I tell you, for God's glory. और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपको बताना चाहता Her हूँ eyes were white. Oh God. और उसकी आंखें पूरी सफेद थी I said, how did she do that? Now और I'm मैंने starting. कहा कि ये कैसे कर पाती है And full total shampoo auntie. Hello, are you listening? और पूरी तरह से मानो जैसे शैम्पू बालों Shampoo में ad. Shampoo शैम्पू ad. का ऐड आता है The hair, you know. और पूरे लंबे बाल I said, God, you have got to save me. और मैंने कहा हे ईश्वर आपको मुझे संभालना Hello, होगा are you listening right now? क्या आप सुन रहे At that time, हैं और उस समय I did something. It was purely the Holy Spirit. मैंने कुछ किया जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा का कार्य And I था। lifted my hand. मैंने अपना हाथ उठाया And I said, thank you, Lord, मैंने कहा धन्यवाद प्रभु that your presence is with me. कि आपकी उपस्थिति मेरे Your साथ है presence is in me. और आपकी उपस्थिति मेरे The अंदर moment है। I said that, और जैसे मैंने ये कहा oh, she started screaming. Ah! और वो चिल्लाने लगी I said, what did I say? और मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कहा Thank God the Holy Spirit teaches us. और धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखाता है Tell your neighbor, listen to the voice of the Holy Spirit. अपने पड़ोसी से कहे पवित्र आत्मा की आवाज को सुने I said, okay, मैंने कहा ठीक maybe है Thanksgiving works. और शायद धन्यवाद देना I काम lifted करता my है hand again. मैंने अपना हाथ फिर से You उठाया know, there was a song. और फिर एक गीत चल You know, रहा था प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों पर भरा. I started singing that song. और मैंने ये गीत गाना शुरू किया प्रभु तूने मेरा जीवन Oh कितनी आशीषों से goodness. भरा I said, thank you, Lord. और मैंने कहा धन्यवाद प्रभु Oh my goodness. That lady started spinning like a top. और फिर वो जो महिला थी भवरे के समान जो है घूमने लगी Oh, she was going here and there. और वो यहाँ वहाँ जो है घूमने लगी She was rolling on the floor. और फिर वो जो है जमीन पर जो है फर्श पर जो है वो घूमने लगी लेट कर। Earlier, she was threatening us. और पहले तो वो हमें धमकियां दे रही थी Now she's telling us, अब वो हमें बता रही है putting her hands on her ears. और अपने कानों पर हाथ रख रही है Stop. और कह रही थी रुको Don't thank God. परमेश्वर को धन्यवाद मत I दो don't like it. मुझे ये पसंद नहीं है Who was telling? कौन बोल रही The थी demon is telling. और वो दुष्ट आत्मा And when we heard that, और जब हमने वो सुना the aunties got wise now. और अब ये आंटी जो है वो काफी होशियार हो गई All the 6 aunties which were वो fallen सारे down, जो 6 के 6 they also started singing. और उन्होंने भी गाना The गाना whole, शुरू it किया was hardly like 30-40 people. Everybody started singing. और कुछ 30-40 लोगों की भीड़ थी और सभी लोगों ने गाना शुरू कर Oh, दिया that day was a lesson in thanksgiving. और Hello. उस दिन वो सबक था धन्यवाद देने के बारे में I tell you for God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए मैं She आपको was बता रहा delivered. हूं। उसे छुटकारा She मिला gets up और वो खड़ी होती like a Hindi movie, you know. मैं और कहाँ हूँ, हिंदी- you know. और हिंदी फिल्मों में जैसा होता है मैं मैं कहाँ कहाँ हूँ हूँ? मैं कहाँ हूँ I said आप इधर ही है जिधर थे मैंने आप. कहा आप जहाँ पर हो जहाँ पर थे वहीं पर हो You know those old movies. मैं कहाँ हूँ किधर और हूँ, जैसे you वो know, in the पुराने hospital, फिल्मों में you know. दिखाते हैं ना मैं कहाँ हूँ होश में आने के बाद And she was delivered. और फिर उसे जो है छुटकारा मिला That was a lesson in thanksgiving. और धन्यवाद देने के बारे में I वो want एक to tell सबसे बड़ा everyone सबक that's था। watching. और मैं सभी को बताना चाहता हूँ जो Many हमें देख people रहे हैं think thanksgiving is a weak prayer. बहुत सारे लोगों को लगता है धन्यवाद देना एक कमजोरी But thanksgiving कमजोरी वाली प्रार्थना है brings down the presence of God so quickly, so quickly. Somebody lift your hand and say, thank you, Lord. लेकिन Hallelujah. धन्यवाद देना Yeah, see, परमेश्वर some of की you are not उपस्थिति lifting को your hand. बहुत तेजी से लाती है सभी लोग बोलो धन्यवाद अगर प्रभु बांध के रखा तो काट के हाथ तो उठा लो भाई भैया. Come on. Before you can give God anything, पहले क्या परमेश्वर को कुछ दे you must thank the Lord. आपको परमेश्वर का धन्यवाद Lift your देना। hands and say, I receive और it. अपने हाथों को Hallelujah. उठाकर कहे मैं इसे You प्राप्त see, करता हूँ now you must be wondering, अब आप शायद सोच रहे होंगे why God allows us to go through these और क्यों problems. परमेश्वर इन सारी समस्याओं से हमें जाने देता है God, why? और परमेश्वर क्यों You see, God is not interested only in your destination. देखिए परमेश्वर की दिलचस्पी केवल आपके गंतव्य पर नहीं है It's not just your destination. और आपका जो गंतव्य है उसी पर उसकी दिलचस्पी नहीं He's also interested in your journey. लेकिन उसकी पूरी दिलचस्पी आपकी यात्रा में Because it is the journey that changes you. क्योंकि ये यात्रा है जो Oh, आपको come बदल on, देती है somebody. You know, many people say, I will reach the picnic spot, then I will be happy. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पिकनिक स्पॉट पर पहुंचूंगा तब जाकर मैं बहुत खुश Then I होऊंगा will enjoy. और तब मैं बहुत ही आनंद मनाऊंगा But look at the picnickers. लेकिन आप देखो जो पिकनिक जाते हैं The real enjoyment is when they are going to the picnic. Hello, और are you सबसे बड़ा आनंद तो Come उन्हें on, तब मिलता man. है जब वो पिकनिक के लिए जाते हैं there? You know, children can't sleep. और बच्चे रात में सो नहीं पाते Hey, go to sleep. ए सो जाओ
That day, और उस दिन they don't get up for school, but that day they got up at 6 o'clock. और उस दिन कभी वो स्कूल के लिए नहीं इतना जल्दी उठते, लेकिन 6 बजे उस दिन उठ Come जाएंगे। on, help me somebody. और कोई मेरी मदद Are you करे। there with me? आप Some मेरे of you साथ act हो। as if you've never gone for a picnic. और Maybe, आप में come से on. कुछ लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं जैसे आप कभी पिकनिक नहीं But you गए। see, it's not just the destination that excites you and changes you. It is the journey which changes you. Come on, help me somebody. देखिए, ये सिर्फ गंतव्य नहीं है जो आपके हौसले को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाता है, लेकिन ये यात्रा है जो आपके हौसले को So बढ़ाता God allows you to go through this journey है। सो परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप इस because यात्रा से He's जाएं। molding you. He's preparing you for the destination, Canaan land. Hallelujah. Come क्योंकि on, वो lift your आपको hands. ढालता है, आपको तैयार करता है Hallelujah. कनान की भूमि के लिए। अपने हाथों को उठाएं। So how you reach there, सो कैसे आप उस जगह पर जाएंगे? कैसे आप उस जगह पर पहुंचते हो, वो भी important है. Have you seen people, they come out of the airport, they look as if they come out of a party, all dressed up and all smelling good and all, you know. And you're wondering like, Arey? And you get somebody, he's come, all his hair and all is like that, and he comes pushing the trolley. Hello, are you with me right now? So how you reach the destination is also important to God. Touch somebody and say, how you reach the destination. अब देखिए, ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के लिए कि कैसे आप अपने गंतव्य तक Jesus. पहुंचते हो। ये परमेश्वर के लिए काफी दिलचस्पी वाली बात है। Reach your destination और with thanksgiving. धन्यवाद के साथ अपने जो है गंतव्य तक पहुंचे। Lift your hands and say, I will reach my destination अपने with हाथों को उठा thanksgiving. करके कि मैं धन्यवाद के साथ अपने गंतव्य तक Come पहुंचूंगा। on, raise your hand and say, I reach my destination with thanksgiving. और अपने हाथों को उठा कर कहे कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने गंतव्य तक The पहुंचूंगा। Israelites reached their destination with grumbling, mumbling. लेकिन हम देखते हैं इजराइल की संतानें जो है वो कुड़कुड़ाते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे। क्या आप साथ में They हो? never enjoyed the journey. उन्होंने कभी भी यात्रा का आनंद नहीं लिया। They reached, they all had वो hurt. पहुंच तो गए, People died, people, their लोग मर family. गए, लोग भूखे थे। But today, लेकिन as आज New Testament Christians, जैसे नए नियम के मसीह you होने reach के नाते your destination, you reach your miracle, you reach your goal with thanksgiving. Somebody, I say, I receive it. आप अपने Hallelujah. गंतव्य तक पहुंचते हैं, आप Yes. अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं धन्यवाद के And the साथ। destination becomes even more enjoyable, even more exciting. Somebody say, I'm और receiving. जो गंतव्य Hallelujah. स्थान है वो और भी ज्यादा उत्साहित करने वाला, हौसला बढ़ाने वाला बन जाता है। Can I say this? क्या मैं आपको बताऊं? You will, when you reach the destination, जब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, you will receive a bonus. आपको बोनस मिलता है। Oh, you're not receiving. आप इसे ग्रहण नहीं कर रहे So हैं। I just thought that, no, sir, you have a bonus. मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लेकिन देखिए आपके लिए बोनस है। I like people testifying like this. और मुझे इस तरह से जब लोग गवाही देते तो पसंद है। मुझे लगा सिर्फ जॉब मिलेगा, लेकिन मुझे 50% का हाइक भी मिला और बोनस भी मिला 2 महीने. I was like, oh, that's how you reach your destination. और जब लोग इस तरह से गवाही देते हैं तो मैं कहता हूँ इसी तरह से आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। Come on, hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से somebody at home, कोई जो घर में है, how are you going to reach your कैसे destination? आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे? It's with rejoicing, with thanksgiving. और वो है आनंद मनाते हुए, धन्यवाद देते हुए। Devil ने ऐसे टांग ऐसे करी है, but don't worry, just keep over that. Thank you, Lord, hallelujah. और देखिए शैतान ऐसे ही बीच Come में on. टांग अड़ाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं, आपको कहना है धन्यवाद प्रभु। There's a bonus. Somebody say और bonus. हमारे लिए बोनस है। I'll show it to you now. मैं आपको बताऊंगा अभी। Go with me to Luke 17, please, if you मेरे can. साथ चलिए लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय And verse 11, please. और हम देखेंगे वचन 11। Now it happened as Jesus went to Jerusalem और ऐसा हुआ कि जब यीशु यरूशलेम को जा that he रहा था passed through the midst of Samaria and Galilee. और वो जो है समरिया गलील के समरिया से होकर जा रहा Luke था। 17, verse 12. और हम देखते हैं 17 अध्याय वचन 12 में। Then as he entered a certain village, और किसी गांव में जब वो प्रवेश उसने किए he met 10 men who were lepers. और प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। And the Bible says, और बाइबल कहती है they didn't come close, they were standing far off. और वो यीशु के करीब नहीं आए, वो दूर खड़े थे। In those days, और उन दिनों में a person with leprosy was legally and religiously unclean. और हम देखते हैं कि किसी को अगर कोढ़ होता है तो वो कानूनी रूप से और धार्मिक रूप से अशुद्ध कहलाता था। They had to stay away from everyone. और हर किसी से उन्हें दूर रहना पड़ता था। Who did not have the disease, they have to stay और away. जिनके पास बीमारी नहीं थी उनसे उनको दूर रहना था। In fact, the Bible says और वास्तव में बाइबल कहती in the है book of Leviticus और लय व्यवस्था की किताब that
if they had leprosy, अगर उनमें कोढ़ की बीमारी they होती had to cry out, leper, 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 तो उन्हें चिल्लाना पड़ता था कोड़ी कोड़ी कोड़ी, so that people would run away from them ताकि लोग उनसे दूर भागे, because it was contagious. क्योंकि वो जो है संसर्गजन्य था। You know, history tells us that there were leper colonies outside the wall of the city. और इतिहास हमें बताते हैं कि कोढ़ से ग्रसित लोगों की रहने की जगह जो जगह होती थी वो अक्सर नगर के बाहर होती थी। One day I was praying एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा and the था, Lord gave me a vision, and I saw in the spirit, मैंने आत्मा में देखा how people would throw food to their loved ones from the wall. और कैसे लोग अपने प्रियजन को जो है दूर से या जो है दीवार से जो है भोजन की वस्तु फेंकते थे, भोजन वस्तु फेंकते थे, Because their loved one was a leper. क्योंकि उनका प्रियजन कोढ़ी था। बात It does करेंगे, not matter what position you had, लेकिन देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पद क्या है। but if the guy was a leper, अगर कोई कोढ़ी है everyone rejected them तो हर कोई उसे जो है ठुकरा and देता they were था left to die. और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। So सुन रहे these 10 men, सो ये 10 लोग they were rejected by society. और उन्हें समाज के द्वारा बहिष्कृत They किया were गया rejected by their own people. और अपने ही लोगों से उनका तिरस्कार हुआ And था। now they hear about Jesus. और अब वो यीशु के बारे में सुनते हैं। Do you know what is to be rejected और by क्या your आपको own मालूम है people? क्या अपने ही लोगों के द्वारा जो है झिड़काए जाने का जो है किस तरह से लोग You can महसूस bear करते हैं? rejection from the outsiders, but when your own people reject you, it's better. Some of them feel it's better to die than to live. जब बाहर वाले Yes, लोग it's very आप- painful. जब बाहर वाले Very लोग painful. आपका तिरस्कार करते Yes. हैं तो आप उसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके अपने ही जब आपका तिरस्कार करते हैं तो ये इतना दर्द भरा होता है कि आप अपनी जान देने की भी सोचेंगे। I want to talk to somebody. आज मैं किसी से बात कर If you रहा have gone through this हूं। अगर आप ऐसे rejection, किसी तिरस्कार की भावना से गए this word is for you. तो ये वचन आपके लिए Share it with somebody who needs it. और किसी के साथ बांटे जिसको जरूरत है। Now, notice they said they stood far away अब ध्यान दें, यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो दूर खड़े हुए and they lifted up their voices. और उन्होंने अपने आवाज़ों को उठाया Jesus, Master, और ऊंची शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, have mercy on us. हम पर दया कर। सुन रहा Now, go to verse 14. I want to show you something very वचन 14 powerful. में जाए, मैं चाहता हूं आपको कुछ So, when दिखाना। Jesus saw them, he said to them, और जब यीशु ने उन्हें देखा तो उसने उसे कहा, notice Jesus did not pray for them. और ध्यान दो यीशु ने उनके लिए प्रार्थना नहीं He की gave them an instruction. और उसने उन्हें निर्देशन दिया। There are many ways healing can come. बहुत सारे तरीके जिससे चंगाई आ There are सकती many ways deliverance can come. और बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे छुटकारा आ सकता है। Many people who come to the service, they don't understand this. बहुत सारे लोग जो सेवा में आते हैं वो इस बात को समझ नहीं They पाते don't understand this. और वो इस बात को They समझ say, नहीं पाते Pastor has to lay hands on me. और उन्हें लगता है पास्टर को हाथ रखना ही He has चाहिए to shake his hands on me like a tabla. और उसे जो है अब मेरे सर पर हाथ रखकर हिलाना ही चाहिए And then I will be healed. और फिर मुझे चंगाई मिलेगी। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे, that's not the way it works. और इस तरह से काम नहीं होता है। God chooses the method to heal you and deliver you. Say hallelujah. देखिए परमेश्वर उस पद्धति का इस्तेमाल कर चुनाव करता है जिससे वो आपको छुटकारा देता है, चंगाई देता है। Listen, सुने, the lepers, और ये जो कोढ़ी थे they must have said, उन्होंने शायद कहा होगा, Pastor didn't pray only for it. पास्टर ने तो हमारे लिए प्रार्थना भी नहीं की Didn't come close. और नजदीक भी नहीं आया Maybe we are poor, that's और why. शायद हम गरीब हैं They didn't think like that. और वो इस तरह से नहीं सोचते। Jesus said to them, और यीशु ने उसे just कहा, one word, सिर्फ एक शब्द, go and show yourself to the priest. और उसने कहा जाओ अपने याजक अपने को याजकों को दिखाओ। Tell somebody there is power in the prophetic word. और कोई कहो कि भविष्यवाणी के शब्द में सामर्थ होता You है। are watching me right now. आप मुझे देख रहे As a हैं prophet of God, I tell you today your life is changing. Hallelujah. और Come on, परमेश्वर का somebody. भविष्यवक्ता होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि Yes. आपका जीवन बदल रहा है। Today we are going to worship God with one song. और आज हम केवल एक गीत के द्वारा प्रभु की आराधना And करेंगे। I was in my prayer room. मैं अपनी प्रार्थना I was के at जो है कमरे में I था was at my altar. और मैं अपनी वेदी पर था। Yes, altar means not something. It's my prayer room. और ये ऑल्टर का मतलब ये And नहीं कि this कुछ is what the दूसरा, Holy Spirit said. ये मेरे प्रार्थना का कमरा था और जब मैं प्रार्थना में था पवित्र आत्मा ने कहा, Come on, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? An instruction. This is an instruction. और ये वो निर्देशन था And they heard the instruction. और उन्होंने निर्देशन को सुना And they went. और वो चले गए Maybe they had doubt, but they और शायद उनमें संदेह था लेकिन फिर भी वो गए। Jesus said, यीशु ने कहा Go. जा, I'm going. सो मैं जा रहा हूँ। I'm going. Now listen. अब सुने, The leprosy is not gone. अब कोढ़ चला तो नहीं गया As they are going, जैसे वो जा रहे हैं। notice what the Bible says. अब ध्यान दो बाइबल क्या कहती As है, they went, everyone say, as they went. और जैसे वो गए They were cleansed. वो शुद्ध हो गए। So sometimes सो कुछ समय God will give you an instruction. परमेश्वर आपको कुछ निर्देशन देगा Many times actually. और बहुत से बार
And when you do that instruction, जब आप उस निर्देशन को मानेंगे, you will see deliverance. आप छुटकारे को देखेंगे, You will see healing. चंगाई को देखोगे, You will see prosperity. आप समृद्धि को देखेंगे। Any type of work that you want God to do for you, you will see it. Hallelujah. जो भी काम आप चाहते कि Yes. प्रभु आपके लिए करे, उसे आप देखोगे। Today the instruction from the Lord is this. और प्रभु की ओर से आज निर्देशन ये है, Wherever, whichever nation, city you're watching, today as a family, you are going to worship God and you are going to see miracles, amazing miracles. Raise your hand and shout a hallelujah, somebody. और आज Come on. चाहे Yes. जिस किसी राष्ट्र से या Yes. शहर से आप हमें देख रही हो, Yes. आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, आप उसकी महिमा को देखोगे। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे An हो? instruction और निर्देशन is a key वो to एक your healing, कुंजी है deliverance, prosperity. आपकी जो है चंगाई, छुटकारा और समृद्धि की। Now everyone say as they went. और सभी लोग कहे जैसे वो जा रहे थे, What if they did not go? क्या होता अगर वो नहीं जाते? अरे मैं सोचा था यीशु हाथ रखेगा, कुछ तेल वेल देगा हम लोगों को। यीशु ऐसा बोलते जा, ऐसा होता है क्या? जा, हटके मिले तो से अभी हील भी नहीं हो गया, बोल रहे जा। ये बाबा लफड़ा है। Come on, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? Pastor tells you go and read the Bible, you'll be here. ऐसा होता है क्या? डॉक्टर ने कुछ नहीं। और पास्टर बाइबल आपको पढ़ेगा, heal कहता होता है है कि क्या? जाओ बाइबल पढ़ो और आप बाद में चंगे हो जाओगे। Come on, hello, are you listening? क्या आप सुन रहे हो? Pastor said pray for half an hour every day, your marriage will be healed, that fellow will come back. ऐसा होता है क्या? Hallelujah. पास्टर कह रहा है कि ये लोगों रोज को हर चक्कर रोज नहीं। आधे घंटे प्रार्थना करो, आपकी शादीशुदा जिंदगी में चंगाई So, आएगी। I told one ऐसा होता है I क्या? told one businessman, और मैंने एक व्यापारी से कहा, listen to me, one Christian businessman, और एक मसीही कारोबारी, I'm really telling you. और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, I told him pray for 1 hour. मैंने उसे कहा 1 घंटे के लिए प्रार्थना करो। You know what he told me? Pastor, आप जानते नहीं। I said, what a nut is. And there was one fellow, other fellow. और फिर एक दूसरा व्यक्ति भी था। How many of you understand? Other कितने fellow. लोग समझ रहे हैं? I really love them. और मैं सच में उनसे प्यार करता हूँ। He had brought that fellow to get prayed over. और वो व्यक्ति ने जो है उस दूसरे व्यक्ति को लाया था कि उसके लिए प्रार्थना की I जाए। met them after 2 months. और 2 महीने बाद मैं उनसे मिला, This fellow, और ये व्यक्ति Christian businessman, और ये जो मसीही व्यापारी है, खाली बोल बच्चन, you know? सिर्फ बोल बच्चन, This fellow said, Pastor Sahib, I went to Pune, you know? और मैं I met पूना this गया fellow. था और मैं इस व्यक्ति से मिला, Pastor Sahib, और पास्टर साहब, मी बोललो जे बोलले मी केलं. और पास्टर आपने जो भी कहा मैंने किया, अरे पण तुला बोललो नाही मी. लेकिन मैंने तुमको तो नहीं बोला था। हे हा मला बोललो नाही पण मी ऐकलं तुम्ही काय बोलले ते. हाँ मैंने तो सुना था, आपने मुझे नहीं बोला, लेकिन जो आपने कहा था वो मैंने सुन जे लिया। तुम्ही बोललं मी केलं. जो आपने कहा मैंने सुना और तुम्ही मैंने बोलले किया। ना तुमच्या बिझनेस मध्ये जा आणि आपने कहा था ना कि आप अपने व्यापार में चले 1 जाए hour प्रेयर करा म्हणून और म्हटलं हर रोज 1 घंटे प्रार्थना करो, आपने कहा था। मी रोज सकाळी जायचो. और मैं हर सुबह मी जाता आणि था, माझी बायको और मैं और मेरी पत्नी, आणि 1 तास प्रार्थना और 1 घंटे हम प्रार्थना करते थे। तर आमचं एक दुकान होतं आता 2 दुकानं झाली. और भाई हमारा पहला 1 दुकान था, अभी 2 दुकान हो गए। I felt like hugging the guy, man. और मुझे And I ऐसा did. लगा कि इन मनुष्यों को मैं पकड़ कर गले लगाऊं, Yes, and I did. और मैंने किया भी। Here is a man और यहाँ पर एक who heard व्यक्ति the है instruction given for somebody जिसने else. किसी दूसरे को दिए गए निर्देशन को सुना, And he did it. उसने किया, And that other guy और वो दूसरा व्यक्ति for whom the instruction was given, जिसको निर्देशन दिया गया था, nothing he did. उसने कुछ भी नहीं See किया। how God operates. देखो परमेश्वर कैसे काम Tell करता your है। neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, obedience to an instruction. और निर्देशन की मानना। Can I tell you one more thing? और क्या मैं आपको एक और God बात will never बताऊं? tell you to do something which is beyond your ability. Help me, somebody. Hallelujah. परमेश्वर कभी भी आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जो आपकी क्षमता के बाहर हो। Come on. Now hear this now. अब सुने इसे, Verse 15. वचन 15। And one of the lepers, when he saw that he was healed, और उनमें से एक कोढ़ी ये देख कर के मैं चंगा हो गया हूँ, he returned और वो ऊंचे शब्द से बड़ाई करता हुआ लौटा, and he with a loud voice glorified God. और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा करते हुए He fell लौटा, down on his face और वो अपने मुंह के बल गिरा at his feet, और उसके पांव के ऊपर गिरा giving him thanks. और उसका धन्यवाद करने लगा। Everybody say, giving him thanks. और सभी लोग कहे उसका धन्यवाद करने Notice लगे। that word. Don't अब miss ध्यान that दें phrase. इस शब्द पर। Say it, everyone, giving him thanks. और उसका धन्यवाद करने लगा, He fell at his feet. वो उसके पैरों पर गिरा। Listen to me. अब सुने इस बात, He was a Samaritan. और वो सामरी था, He was a foreigner. और वो एक विदेशी He was था, not a Jew. और वो यहूदी नहीं था। Now listen to this. अब सुने इस बात को, All the 10 people, they obeyed God. और वो सारे 10 के 10 लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, They went. वो गए, Come on, everybody say they had faith. और सभी लोग कहे उनके पास विश्वास था, They went, they obeyed the Lord. और वो चले गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। But only one person
लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति, out of the 10, 1%, that is out of 100, 10% only. और हम देखते हैं कि 10 में से एक, या फिर आप कह सकते हैं कि This 100 man में से had an 10%, attitude of thankfulness. ये मनुष्य जिसके पास धन्यवादी जो है स्वभाव था, And he said, Lord, I thank you. और उसने कहा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। This scripture is written for a reason. Please listen to me ये carefully. वचन जो है उसे लेके जाने के पीछे कारण है, Only 10% of the people, और लोगों की जो जनसंख्या उसमें believe 10% लोग हैं, मैं विश्वास they करता are हूँ, thankful to what God has done in their और वो life. परमेश्वर के आभारी होते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है। Today I pray आज मैं प्रार्थना करता हूँ that the percentage would increase. कि वो प्रतिशत जो है वो बढ़े, Somebody say, I receive. और कोई कहे कि मैं इसे पा लेता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Now, I want to show you something that I've never seen this before. Maybe you know. और And मैं Jesus आपको answered. कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जैसे मैंने पहले कभी नहीं Look at the देखा। heart of God. आप देखिए परमेश्वर का हृदय, He's asking that guy, और वो उस व्यक्ति से पूछता है were there 10 not cleansed? क्या दसों शुद्ध नहीं हुए थे? Jesus didn't see them, अब यीशु ने उनको देखा नहीं था, but he knew लेकिन वो जानता था that all the 10 were healed. कि 10 के 10 शुद्ध हो चुके हैं। See that, the word of knowledge. Come अब on. देखो बुद्धि का वचन, They didn't come back, but Jesus not 10 वो were वापस cleansed. नहीं आए, लेकिन देखो यीशु कहता है क्या वो 10 चंगे नहीं हुए? Come on, help me right now. और मेरी They मदद had करें। faith, they were healed. उनके पास विश्वास था, He वो says चंगे हो only गए, this man came. लेकिन केवल यही व्यक्ति वापस आया। Now Jesus says something to them. अब यहाँ पर यीशु मसीह उनसे कुछ कहता है, Everybody say bonus. और कब सभी लोग कहे बोनस। Come on, everybody receive your bonus right और now. हर कोई अपने Hallelujah. बोनस को Today प्राप्त करे। receive it. If you're Hallelujah. I'm not telling और you आज to इसे raise your ग्रहण purse. करें। I'm telling you to raise your hand. Come on. मैं अपने आपके बटवे को उठाने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अपने हाथों को उठाओ In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम Are में। you listening right क्या now? आप सुन रहे हो? And he said, I like it in the KJV. और KJV में जो लिखा है, He says, your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। And इसका Jesus said, अध्ययन your किया, faith has made you whole. और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। Wait a minute. और Even the people, रुके। those who received the healing, they had faith. But this man had faith to thank God. Hallelujah. हम देखते हैं कि बाकी जो 9 थे Jesus. वो भी चंगे हुए, उनके पास भी विश्वास विश्वास था, था. लेकिन ये व्यक्ति जो है उसमें धन्यवाद देने का विश्वास था। Oh, your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। You know what is whole? क्या आपको मालूम है परिपूर्ण होने का This मतलब? word whole carries something very powerful. अब देखिए परिपूर्ण होने का मतलब I बहुत ही believe this. सामर्थ्य है। मैं ये Listen to विश्वास this. करता You know हूँ। when सुने, leprosy attacks a person, जब कोई कोढ़ व्यक्ति पर हमला करती है, the nose is eaten off. और हम देखते हैं कि कोढ़ की बीमारी से नाक जो है वो पूरी तरह से सड़कर गल जाता है, The fingers are all worn off. और हम देखते हैं कि उंगलियां कोढ़ के कारण जो है वो टेढ़े मेढ़े हो skin जाती is है worn और off. वो पूरी तरह से सड़ने लगती है। Yes. But I believe लेकिन मैं ये यकीन करता हूँ as this man came, जैसे ये मनुष्य वापस आया at that very moment, और उसी घड़ी the nose, वो नाक the fingers, और वो उंगलियां they must have started growing back. और वो फिर से बढ़ना शुरू हुआ होगा। And here's what the Holy Spirit says. और देखो यहाँ पवित्र आत्मा क्या When कहता you है, have thankfulness as a weapon, as a spiritual weapon, everything that was stagnant, everything that was not happening, it suddenly starts growing even to the better state. Hallelujah. Lift your hand and say, I receive in Jesus' name. देखिए जब आप Yes. धन्यवाद देने का इस्तेमाल करते हैं उस हथियार के रूप में, तब वो सब जो चला गया था वो पहले से बेहतर रूप में वापस आता है। Listen to me. आप इस बात को The सुने। other people, they only received, the leprosy stopped. और Yes. दूसरे लोगों में मुझे लगता है कि कोढ़ जो है वो बंद हो गया था, But this man, लेकिन ये the मनुष्य leprosy stopped. और उसका कोढ़ बंद हो गया He received restoration. और वो पुनर्स्थापित हुआ He was completely whole. और पूरी तरह से परिपूर्ण हुआ। How many of you are listening right now? कितने लोग इस बात को सुन People रहे of हैं? God, परमेश्वर के लोगों, I want to say this. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, Thanksgiving is such a powerful weapon. धन्यवाद देना परमेश्वर का सामर्थ्य हथियार है। It will not only restore you to your original, it will take you beyond the original.